that you have applied. So first, can you just brief me about yourself, Mansi? Yes. Thank you, sir, giving for opportunity to introduce myself. My name is Mansi Bokche. I have completed my graduation in BCCA at GS Raisoni College of Nagpur. I am currently working as a intern at PSK Technologies Private Limited as a graphic designer. And coming to my family background, we are two members in my family, me and my mother. My mother is doing business, and my hobbies are dancing and traveling. Thank you, sir. Okay. Um, so you have completed graduation in BCCA. Yes, sir. Okay. And you are right now working as an intern at PSK Technologies. Yes. So from how long are you working at PSK? Last 4 months. Last 4 months. How many members are there in your family, Mansi? Two members, me and my mother. Okay, okay, okay. So what about your father? A father is no more. Okay, very sorry about it. Okay. So Mansi, just tell me what made you decide that you want to pursue your career into graphic designing? I believe you are working as a graphic designer at PSK, right? Yes, sir. Yeah, please tell. Did you got my question? Shall I repeat it for you? Repeated. Okay. So my question is, since you are working as a graphic designer at PSK, so what made you decide, okay, or what thought came in your mind when you decided to pursue graphic designing as a career? Okay, just tell me, what do you want to become in career? Are you not prepared, Mansi? Yes, Why? You were aware, na, that we are going to have your mock interview. yes, sir. Then why are you not prepared? Okay, just tell me about your current work at PSK. What are you doing at PSK? As a graphic designer. Okay, as a graphic designer. So as a graphic designer, what are you doing? Uh, like create a poster, reels, video, and also post it on social media accounts, all images and I have done my project in Motivational Papa. Okay, okay. So basically, you are responsible for designing logos, Hmm. Yes, sir. creating videos, right? Yes, And one of the project where you have worked is Motivational Papa. yes, So what was your contribution? sir. My contribution is uh, reels, video, reels, video, and flyer, poster, and all social media account post image. So you just said reels, posters, social media posts and everything. So what do? You simply post it or you are responsible for creating and then posting it? Creating and posting it. So just tell me that way, no? That you are responsible for creating as well as posting. Okay. So how many members or what is the team size for this project Motivational Papa? Are you only responsible for the complete project or you are working in team? Team. Team. Okay. So what is the contribution of others? If you're only responsible for creating and completely posting the Other teams like reels, video.
So multiple reels, multiple videos are been Videos. created and posted. Yes, So sir. every individual is responsible for creating their own videos, reels, and then posting it. Yes, sir. Okay. So what challenges have you faced? Mm. Sir, exploring in new things in Canva, Render Forest, application used for. So, I mean, are these challenges? Are you able to get my question, Mansi? See, first of all, don't get nervous. Okay. Uh, Take a deep breath. Okay, relax. And then just try to first understand my question. If you are unable to understand it, then I'll repeat it for you. I'll try to make it simplified. Okay. And then you can answer me. Yes, sir. Huh. You want to take a half minute of break? You want to get relaxed? No. You're okay? Yes, sir. Then my question is, what kind of challenges have you faced while you were working on Project Motivational Papa? No challenges? You haven't faced any challenge? No, sir. Okay. Now just tell me what kind of tools, technologies are you using? Canva, Render Forest, Photoshop, and poster my wall, Okay. and InDesign, Hmm. and InDesign and X. Okay. Okay. So you have mentioned uh, the name of these tools, Canva and Render Forest, in your project Motivational Papa. Created post videos, festival images by using Canva and Render Forest, sorry, right? Yes, sir. You were there in our resume writing session, which happened last Wednesday. आप थे वहाँ पे? Yes, sir. Okay. So have you updated your resume after that? Yes, sir. So, but the what do you understand with the term objects? ये आपने objects लिखा है, objects का मतलब क्या है? Sir, object को upgrade, हाँ? dynamic और हम्म। ये आपने कहीं से पढ़ के लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? copy paste. कॉपी पेस्ट किया है, इसका क्या मतलब होता है? कैन यू जस्ट रीड एंड टेल मी? डू यू हैव योर रिज्यूम इन फ्रंट ऑफ यू? No, sir. ओके, आई जस्ट रीड इट फॉर यू। आप फिर Yes, मुझे समझाइएगा व्हाट डज इट मीन। Dynamic and result oriented individual with significant expert is in completing project in a well established IT organization looking for a challenging position to use my knowledge and support for the growth of the company। ये आपने आधा आधा कॉपी पेस्ट किया है क्या? yes, sir. वेरी रॉन्ग। A big negative point over here, Mansi. Plus, you have not properly mentioned the headline or the title objective. Okay. What do you want to say? Do you want to say something to me? Do you want to share something? No, No. Why? आपको जॉब नहीं चाहिए? हम्म। चाहिए. Then for that you need to speak ना, बिना बोले कैसे जॉब मिलेगा? कोई देगा आपको जॉब अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो? No, Then
व्हाट वाज योर स्कोर ड्यूरिंग योर 10th स्टैंडर्ड? एसएससी में कितना स्कोर था आपका? 62. फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर एसएससी? जिन जिंदल पब्लिक स्कूल. एंड देन एचएससी? HSC राजीव गांधी. एंड व्हाट वाज योर स्कोर? स्कोर 67. एंड देन बैचलर्स फ्रॉम जीएच रायसोनी। यस. तो यहाँ कितना स्कोर रहा आपका? 7.2 CGPA. 7.2 मतलब इट इज अराउंड एवरेज ओनली। स्कूल आपने कभी स्कूल में कॉलेज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इन एनी ऑफ द इवेंट्स? या किए किसी में पार्टिसिपेट, को हाँ, करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल? डांस कंपटीशन एंड हिंदी कंपटीशन. हिंदी कंपटीशन, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर इन हिंदी कंपटीशन? और 2 मिनट एंड हिंदी स्पीच. 2 minute हिंदी स्पीच। ओके। आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश? देन कैसे जॉब लगेगी आपको? ओके, विल स्टॉप ओवर हियर मानसी, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज, आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? नर्वस क्यों इतना आप? हाँ, सी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क मानसी। यस नो में आप जवाब दोगे, आपको जॉब नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस आप बहुत नर्वस हो, कॉन्फिडेंस जीरो है आप में, ठीक है। आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है? कभी अपने स्कूल में कॉलेज में सामने आके कुछ प्रेजेंटेशन कुछ स्पीच वगैरह नहीं दिया है क्या? दिया. दिया है, तो फिर अभी क्यों नहीं बोल रहे वहां पे? आप अकेले खड़े थे सामने स्टेज पर, सबके सामने, पूरी स्कूल के सामने, सब कुछ हुआ है, क्लास के सामने अकेले खड़े हैं। यस सर. तो फिर अभी अभी भी तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आप बोलते थे या नहीं बोलते थे आप? बोलती थी सर. तो फिर अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? व्हाट इज द इशू दैट यू आर फेसिंग मानसी? सर वो फैमिली इशू के कारण मैं थोड़ा डिप्रेस. नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड डियर। आपके पापा की डेथ कब हुई? 2021. 20 में? कोरोना के टाइम पे? यस. अच्छा अच्छा, तो फैमिली में आप और आपकी मम्मी रहते हैं अभी फिलहाल? ठीक है, देखो अभी क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज, अभी प्रशांत सर जो वहाँ पे आप आपको सिखा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करो, ठीक है। यस सर. टेक्निकल पार्ट अपना अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और दूसरी चीज, रेगुलर बेसिस पर आप मिरर के सामने जाइए। अभी डिप्रेस नहीं होना है, अभी हमें वर्ल्ड को फेस करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाइए, जो भी आपको टॉपिक पसंद हो। अगर जैसे आपके टेक्निकल पार्ट का ही कोई टॉपिक है, ठीक है, तो हम लोग थेरोटिकल पार्ट भी जो है पढ़ते हैं, वी डू अकेडमिक्स में भी हम लोग थेरोटिकल चीजें लर्न करते थे ना। तो आप जैसे जो भी आपको कोई टेक्नोलॉजी है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ है, तो उसको एक पैराग्राफ, रोज का एक पैराग्राफ कोई भी अच्छा टॉपिक का जो आपके पसंद का हो, उसको आप रीड करिए। और मिरर के सामने में, मान के चलिए आपको कोई पूछ रहा है कि यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक इन इंग्लिश, तो आप बोलिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट फील करिए, ठीक है। अभी आई अंडरस्टैंड दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा एट दिस फेज, बट अभी उससे बाहर निकलना है, बिकॉज यू हैव टू फेस दी वर्ल्ड। अभी जॉब करना है, जॉब अगर उस सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, तो ऐसे चुप रहोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आपकी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। और यस सर. डेली बेसिस पे कुछ भी आपको जो हेल्प लगती है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप प्रशांत जी है, प्रशांत सर से कनेक्ट करो। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो। आपको कुछ चीज यस. सीखना हो, कुछ भी हो, तो यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल, ठीक है। बट प्लीज प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा चीज, यस. इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है, प्रशांत जी भी आपको आपको सबको बताते हैं। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियोस देखो आप। घर जाते टाइम अगर बस पे जाते हो तो बस पे बैठ कर देखो। घर पर फ्री टाइम मिलता है तो इंस्टाग्राम मत देखो, यूट्यूब के अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ो। बिकॉज मानसी, आपको बहुत सारी चीजें सीखना भी बाकी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप कर सकते हो, ठीक है। इट जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट विलिंगनेस। हम कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति अंदर से आनी चाहिए।
ठीक है, फाइट करने का स्पिरिट आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फेस दी वर्ल्ड एंड गेट अ गुड जॉब। ठीक है। अभी देखिए, अभी जो यस आपने सर। इंटरव्यू दिया वो बहुत मतलब बेसिक से भी कम था, आपने भी देखा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसकी तैयारी करो डियर। ठीक है, काम करना है हमें, बट हम काम क्यों कर रहे हैं वो भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक यस। आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, एक टिप देता हूँ। जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो उसको लिखो, मैंने ये काम किया तो क्यों किया, और ये करने से मुझे क्या फायदा हुआ। ठीक है, अब जो भी काम किया, जैसे आपने रील्स पोस्ट की, रील्स डाली, ठीक है, इंस्टाग्राम में जो भी कहीं जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो डालने के बाद उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव मिला तो कितना पॉजिटिव मिला, कितने लोगों ने व्यूज किए, कितने लोगों ने कमेंट्स किए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। यस सर। हेलो। 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 यस सर। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी यस। आवाज आ रही है आप? यस सर। हाँ, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो लास्ट आपने क्या सुना? सर आप बोल रहे थे कि कुछ भी करने से पहले लिख के रखो जो भी आप वर्क करते हो। हाँ, ऐसा जो ही भी है। आप काम कर रहे हो वो लिखो, हाँ वो लिखो। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको पूछा था कि आपको आपके प्रोजेक्ट करते करते क्या चैलेंजेस आए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, आप जब लोगो बना रहे होंगे, तब आपको लोगो बनाने में दिक्कत हो रही होगी, कलर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होगे, जो कुछ भी है, जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं ना, वो लिखो, लिख कर रखो कि मुझे ये, जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी तो ये चैलेंज आया था। जब आपने वीडियो पोस्ट किया होगा तो उसमें आपको पहले हफ्ते में ज्यादा व्यूज नहीं मिल रहे थे, व्यूज ना मिलने के क्या कारण थे। ठीक है, वो सारे चैलेंजेस है। ठीक है, जो कुछ भी चैलेंज आपको आते हैं, बैरियर्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट करते टाइम, टास्क करते टाइम, वो आपको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। साथ में उस चैलेंज को आपने ओवरकम किस तरीके से किया वो भी आपको लिखना है। अब इससे क्या होगा, आप लिखोगे तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप तैयार रह सकते हो कि मैंने जो काम किया वो ये काम था, उसमें मुझे ये चैलेंजेस थे, मैंने इसको इस तरीके से ओवरकम किया। तो आपको फिर घबराहट होगी नहीं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता रहेगा। राइट, तो ये इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहता है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। ओके, यस सर। कुछ क्वेश्चन पूछना आपको मानसी? हाँ सर, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कैसे करें? इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश की वीडियोस देखना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में बातें करना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने आपको वहां सबको बताया था कि आप जो भी कर रहे हैं सब बातें कर रहे हैं इंग्लिश में काम के रिलेटेड, कि नहीं करते हो आप सब? नहीं नहीं। करते हो ना? वेरी रॉन्ग। तो फिर कैसे इंग्लिश सीखोगे? सीखना हमें पता है, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। और मैंने उस टाइम भी आपको कहा था मानसी, देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। दूसरे लेंगे तब मैं लोगी ये सोचोगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो टेक योर फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर कलीग्स एंड peers and friends in English, at सर। least for the project on which you are working, so that if you are facing interview in your future, you will be in a position to communicate in English very easily। है ना, अगर हम अभी, मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब मराठी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, है ना, तो कुछ भी काम करते करते अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, जो कुछ भी है। और वही चीज अगर हमें किसी थर्ड पर्सन को बताना हो तो हम इजीली बता पाते, अगर लैंग्वेज सेम हो तो। अगर मैं कहूँ कि इसको हिंदी मराठी में ही समझाओ तो इजी क्यों हो जाएगा, बिकॉज हम जब काम कर रहे थे तब हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, या फिर मतलब जो तरीका था कम्युनिकेट करने का, उसमें जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो वही था। तो इट बिकम्स easy for us to communicate or conversate with that person, third person. Similarly applies to English as well. Like if you are communicating in English, if you are having discussion in English during your work, and later on whenever you are facing interview, and if the interviewer is asking you questions which are in English only back again, so in that case you will be able to answer in English easily. Why? Because आप जब काम कर रहे थे तब आपने बात करते करते भी इंग्लिश में ही बात की थी। ये सिंपल तरीका होता है, इसको फॉलो करो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही आपको अच्छा जॉब मिलेगा, वरना आप ऐसे ही अकेले पीछे रह जाओगे। ठीक है, और कोई ओके क्वेश्चन है सर। आपको? नो सर। और थैंक यू सो मच मानसी फॉर योर टाइम। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।
Okay, sir. Thank you, sir.